कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ हमारे मध्य हैं। मैडम वाई विमला जी अत्यधिक डायनामिक होने के साथ साथ बहुत ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व की धनी हैं। किसी भी समस्या का त्वरित और व्यवहारिक हल प्रस्तुत कर देना आपकी विशिष्ट कार्यशैली है। मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय प्रति कुलपति महोदया को अपने स्वागत उद्बोधन के मैम शब्द सुमन अर्पित करें। दीप्ति मैम, एक सेकंड स्टार्ट करने में सबके माइक म्यूट कर रहा हूँ और फिर मैं पर्टिकुलर खोल दूंगा मैम का एक एक करके, ठीक है? मैं अभी एक सेकंड के लिए, तुम लोग दिक्कत कर रहे हैं। जी दीप्ति मैम, आप कर दीजिए। जी सर, माननीय आदरणीय प्राचार्य जी से अनुरोध है कि वो माननीय प्रति कुलपति महोदया को स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। Okay, very good afternoon to Professor Vai Vimla ma'am and to all the participants. As you all know, the topic that we are going to talk about today is reaping the benefits of the scientific and environmental gains post COVID-19. Now, we don't have to be a science graduate to know that the environment has benefited greatly due to this lockdown. But these environmental benefits with the air and the water quality becoming very clear and very useful for the human beings is a short-term benefit. And we also have celebrated the animals coming out of their habitats with the human beings locked inside. But as they say, this situation is not normal and it's still unfolding. So this is the environmental gain, but as I said, it is a short-term benefit that we are watching, because once the lockdown is over, the life is going to go back to normal, and God knows what will happen to all the benefits that we have reaped in such a short time. On the scientific side, we all know that the race for vaccine and a cure for this coronavirus is being taken up by all the countries at war footing. And only yesterday in the news, you all must have seen that Israel is already claiming that they have a vaccine and they are going to go in for trials. But just 2 days back, I was reading in the newspaper Live Mint, which said that the vaccine for coronavirus might not come at all. Just as we do not have a vaccine for HIV and dengue fever till today. So that news was quite disturbing. So the news these days is every day, filled with one day a very optimistic view about the vaccine and a cure, and the other day we go down in the dumps when something negative comes up. So let's hear it from the subject expert of today. So before that, we would like to welcome Professor Vai Vimla ma'am, who is the Pro Vice Chancellor of CCS University and does not need any introduction if you are from this university. But since we have people from other universities also and other states also, almost 5 states are represented as we came to know yesterday. So for everybody's benefit, I would like to introduce and give a small introduction about Professor Vai Vimla ma'am. She is a gold medalist in MSc Botany in 1981 from CCS University, Meerut, and also the first rank holder in a diploma that she did in Russian language. What a combination, botany and Russian, and a gold medalist in both. And as regards the awards that she has received, she received the Professor M.S. Swaminathan Award in 1985 by the Indian Botanical Society. Professor Iyengar Sahni Award in 1986, again by the Indian Botanical Society. She's also been the chief editor of Indian Botanical Society's journal since 2007 onwards. She got the Scientist of the Year Award 2012 from Society for Plant Research.
She's been a recorder for the plant science section of the Indian Science Congress in 2017-18, and also the president of the plant science section of the 107th Indian Science Congress in 2020. Her field of specialization is plant developmental physiology, phytochemistry, and tissue culture, and she has about 38 plus years of experience in PG teaching and research, with over 150 publications to her credit, including research papers, edited books, chapters in books in various national, international journals, abstracts, etc. She has also guided about 100 students for research projects, MPhil and PhD. In the university, she has held the prestigious posts of Chief Editor of the University Bulletin in 2002, Chief Warden of the Girls' Hostel from 2004 to 6, Chief Coordinator Admissions in 2012 and 13, and the Dean Students Welfare 2013 onwards, besides being the head of the Department of Botany and the chairman of the IQAC cell of the university. At present, she is the Pro-Vice Chancellor of the university, as we all know, since December 2018. And those who know her personally are also aware that how devoted and dedicated she is towards her work. So it's a pleasure, ma'am, to have you with us today, and we really feel honored. And I welcome you on behalf of all the participants and my college. So, and we are eagerly waiting for your presentation. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच मैम। आप सबको अवगत करा दूं कि आज के इस सेशन को चेयर कर रही हैं डॉक्टर आभा दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर ग्रीन एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, MMH कॉलेज गाजियाबाद, एवं रिपोर्टर की भूमिका में है डॉक्टर मणि अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य संकाय KMGG कॉलेज बादलपुर। चूंकि हम सभी अभी प्रोफेसर वाई विमला मैडम को सुनने के लिए लालायित हैं, उत्कंठित हैं, इसलिए आपका अधिक समय न लेते हुए मैं मुख्य वक्ता महोदय से अनुरोध करती हूं कि कृपया वे अपने सारगर्भित वक्तव्य से हम सभी को अभिसिंचित करें। माननीय प्रतिकुलपति महोदया आमंत्रित हैं। हेलो मैडम, आप सुन पा रही हैं हमें? मैम शायद हट गई क्या? डीसी सर माइक ऑन कर दीजिए आप उनका। नहीं, मैं वही देख रहा हूँ मैम का। मैम किस नाम से है मैम का? विमला लिख करके आता है। अभी आ रही थी मैम, अब नहीं है शायद। हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले। हाँ वही तो, अभी तो आ रही थी मैम, अभी है नहीं, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गए हो सकता है। चलिए वेट कर मैम का, हाँ कॉल करके या तो आप पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस बीच में मैं सबको बता दूं कि अगर आज का व्याख्यान जल्दी समाप्त हो जाता है और क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद भी अगर हमारे पास कुछ टाइम रहेगा तो ऑनलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट करें इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो सभी प्रतिभागी लास्ट तक हमारे साथ रहें। इस समय ऑनलाइन शिक्षण का दौर है, और लेकिन ऑनलाइन एग्जाम कैसे लिया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस विषय पर डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी प्रकाश डालेंगे। अगर आज समय रहता है, अन्यथा वो कल के समय के लिए भी स्थगित किया जा सकता है। समय के अनुसार इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। सर क्या दिख रहे हैं मैम? नहीं अभी तो नहीं है मैम, अभी दिख रही थी ना मैम, जब आई थी तब थी मैम। डीसी सर प्रिंसिपल मैम कुछ कह रहे हैं, आप माइक उनका ऑन कर दीजिए। मैम का माइक ऑन है? ऑफ है। अच्छा मैम का ऑफ है जी। जी हाँ, मेरी बात हुई अभी, उनके कुछ वाईफाई चला गया था, हो सकता है लाइट चली गई हो, तो उन्होंने कहा कि अभी तुरंत कनेक्ट कर रही हैं। जी
तब तक आप लोग अपना जो भी इंटरेक्शन हुआ है, जो कुछ शेयर करना चाहें, जो प्रॉब्लम आ रही हो, तब तक करेंगे। दीप्ति मैम। जी सर, सुबह हमने 4 ग्रुप में मैंने भ्रमण किया था, 6, 7, 8 और 9। सभी में देखा कि अच्छा डिस्कशन चल रहा था और आपसी तारतम्य भी देखने को मिला। स्ट्रेटेजी प्लान हो रही थी, कहीं डिस्कशन हो रहा था, तो सुनकर अच्छा लग रहा था सभी को। मुझे लगता है कि किसी की कोई परेशानी या ऐसी समस्या नहीं थी जो उन्होंने बताई हो कि उनको इस वर्कशॉप में आ रही है। बाकी अभी इस समय अगर समय है तो अगर किसी को कुछ कहना है तो कृपया हाथ खड़ा कर सकते हैं, उनके लिए माइक ऑन कर दीजिए। मैं 2 बातें आपको इन्फॉर्म कर दूं। एक तो जो सुबह की ग्रुप अटेंडेंस होती है, हमारी अटेंडेंस जो हो रही है, उसमें हम इंडिविजुअली जैसे भेजते हैं तो फिर हम बाकायदा आपको टिक करना पड़ता है हमें। तो शाम वाली अटेंडेंस तो इंडिविजुअल है ही है। सुबह वाली अटेंडेंस में आप लोग एक टीम लीडर जो है ग्रुप का एक फोटो भेज देंगे जिसमें 10 के 10 लोग प्रेजेंट दिख रहे हो, ठीक है। और एक जस्ट आपने जब लॉग इन किया 11 बजे और एक जब आप समाप्त करने के समय पर, तो सभी लोग फिर उसमें इंडिविजुअल नहीं डालना पड़ेगा 11 से 2 के वो 11 से 1 के वाले में बस केवल, ठीक है। उसमें एक कलेक्टिव टीम लीडर डाल देंगे सबके स्क्रीनशॉट दिखते हुए। अदरवाइज हमें टैली करना पड़ता है कि टोटल सबको, शाम वाले में हम टैली करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है, गूगल फॉर्म का जो फीडबैक है वो अभी 63 लोगों ने भरा है कुल। आज शाम तक खुला रहेगा, जब तक दूसरा फॉर्म डलेगा, यानी कि दोबारा का जो फीडबैक लिया जाएगा उस तक ये खुला रहेगा। तो अपना बाकी लोग भी गूगल फॉर्म पे अपना फीडबैक दे देंगे। 63 लोग दे चुके हैं अभी तक, बाकी लोग भी दे देंगे। और अभी भी चैट बॉक्स में आप अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ये सभी से रिक्वेस्ट है। और लास्ट में आपकी फीडबैक के साथ की सारी डिटेल आ जानी चाहिए। और जैसा मैम बता रही थी, इंटरेक्शन रियली बहुत अच्छा था। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि जितने ग्रुप में बातचीत हुई, मैंने 5 ग्रुप विजिट किए, 5 में उत्साह भी था और सबने कहा कि उनके लिए बड़ा एफडीपी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरेक्शन का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है और दे आर लर्निंग। और लोगों ने अपने अपने तरीके से इवॉल्व भी किया चीजों को। दिनेश जी से रिक्वेस्ट है, जैसी मैम आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूं अपनी बात। तो लोगों ने कुछ जैसे कहा कि उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया एक ग्रुप में, कि उन्होंने क्या किया, रोजाना में एक रिपोर्टर, एक चेयरपर्सन डेली अपॉइंट कर दिया ताकि वो प्रेजेंट देता रहे। दूसरा, कुछ लोगों ने क्या किया, जो ब्रॉड थीम मिली है, मान लो किसी को इकोनॉमिक्स की थीम मिली है या इकोनॉमी की थीम मिली है, तो उन्होंने इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट पर 9 बांट दिए और 9 के 9 एरिया, जैसे कोई मान लो बता दिया किसी को पब्लिक सेक्टर पे क्या असर पड़ा है, लग्जरी गुड्स पे क्या है, तो उस सबको बांट के उन्हें काम को डिवाइड कर दिया है ताकि इंटेंसिव स्टडी आ सके। तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे को जानना और सुनना। तो लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी भी लगाई है और बेहतर काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि सबने पॉजिटिव उत्साह दिखाया।